আজকে আমরা সমস্ত স্কুল, যে সমস্ত স্কুলে গোয়ালপুকুর চক্রে সায়েন্স স্ট্রিমটা 11-12-এ এসেছে, সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকেরা, সঙ্গে আমাদের আনোয়ার সাদাত মাস্টারমশাই আছেন, আমাদের এলআই বক্স হাই স্কুলের প্রেসিডেন্ট সাহেব আছেন, সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি যে বাচ্চারা, যে গোয়ালপুকুরের ছেলেরা এতদিন বঞ্চিত হতো সায়েন্স স্ট্রিম পড়ার জন্য, বাইরের বিভিন্ন ব্লকে যেত, আজকে আমরা গোয়ালপুকুরের মধ্যেই 4টা স্কুলে সায়েন্স স্ট্রিম নিয়ে চলে আসতে পেরেছি। তো চেষ্টাও করছি যে সমস্ত বাচ্চারা এখন অবধি ভর্তি হতে পারেনি সায়েন্স থাকার না জন্য, তাদেরকে আবার আমরা সায়েন্সে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি এবং ভর্তিও শুরু হয়ে গেছে। সেই জন্যই আজকে প্রেস মিট করে আপনাদেরকে জানানো যে এত বড় কাজ আজকে আমরা সাফল্য এটা পেয়েছি। আর এই যে নতুন যে 2025-এর সেশন যে স্টার্ট হয়েছে, তো এটা কি এখন রিভিশন হবে? হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করছি যে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করছি এবং যে সমস্ত বাচ্চাগুলো এখানে স্কুল সায়েন্স না থাকার জন্য বাইরের স্কুলে গিয়ে জিওগ্রাফি অন্যান্য সাবজেক্ট নিয়ে অ্যাডমিশন হয়েছে, তারা আবার তাদেরকে বলা হয়েছে যে সায়েন্স স্ট্রিমে আমরা পারমিশন অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছি, তোমরা এখন আমাদের এখানে ভর্তি হতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার ব্যাক করছে। হ্যাঁ, যেহেতু তাদের এখন ফাইনাল রেজিস্ট্রেশন হয়নি, শুধু জাস্ট অ্যাডমিশন হয়েছিল, তারা এখন সায়েন্স অ্যাডমিশন হচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে 19 এর টিচারের মানে খুবই অভাব আছে, তাও এখন সায়েন্স স্ট্রিমে, তো টিচারের কি ব্যবস্থা আছে স্যার? কি করে ছেলেগুলোকে পড়াশোনা করাবে? যেহেতু 4টা স্কুলে হয়েছে সায়েন্স স্ট্রিমটা, যদি দেখা যাচ্ছে কোনো একটা স্কুলে সায়েন্স স্ট্রিমের টিচারের সমস্যা আছে, তো আমরা পাশের স্কুল থেকে সেগুলো ম্যানেজ করে দিচ্ছি। এটা বোর্ডের গাইডলাইনও আছে, গাইডলাইনেও বলা আছে যে সেটা করা যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন পার্ট টাইম টিচারও আমরা নিয়েছি সায়েন্সের, বা যদি আমাদের প্রাইমারিতে কোনো যোগ্য শিক্ষক থাকে সেখান থেকেও আমরা নিয়ে এসে তার ব্যবস্থা করেছি। কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই শিক্ষক নিয়ে এই মুহূর্তে গল্প করে। দেখা যাচ্ছে কোনো এক স্কুলের 25 থেকে 24 সেশনে পারমিশন দিয়েছে, কিন্তু এই 11-12 2 বছরের হয়, তো 1 বছরের জন্য পারমিশন কি করে? হ্যাঁ, এই প্রথম পারমিশনটা 1 বছরেরই হয়, ঠিক আছে? তারপরে আবার আবার দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে কোনো আবার স্কুলে 2 বছরের জন্য দিয়েছে। হ্যাঁ, তো এটা কোনো ফ্যাক্টর না, ঠিক আছে? এটা রিনিউয়াল হবে, এটা কোনো চিন্তার কোনো বিষয় নেই। যেটা মনে করেন কোনো ছেলে এডমিশন নিয়ে নিল, তার কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে দেখা গেল না না না, কন্টিনিউ হবে, কন্টিনিউ হবে, এটা কোনোদিনও হয় না। হ্যাঁ, ছেলের মধ্যে মানে একটা ভয় থাকে নাকি না 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 না, তাহলে তো আমরা অ্যাডমিশন নিতাম না, সেই চিন্তা তো আমাদের, বিশেষ করে আমাদের সেটা চিন্তা থাকবে, কারণ আমরা যদি অ্যাডমিশন নিই তাদেরকে তো কমপ্লিট আমাদেরকে করিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? সেটা আমাদের দায়িত্ব। बिल्कुल बहुत खुशी की खबर है ये ग्वालपोखर के लिए। साथ-साथ एक चीज़ और कहेंगे ग्वालपोखर खुशी की जब बात आई है, तो फिलहाल कुछ दिन पहले ही हम लोगों का गुड़गाँव हाई स्कूल का हेडमास्टर, वो माध्यमिक के जॉइंट कन्वीनर चुने गए बोर्ड की तरफ से। उनका कांग्रेचुलेशंस हम लोग करते हैं संगठन की तरफ से। मंत्री साहब को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये जो साइंस लेके बहुत दिनों से एक तरह का मुहिम चल रहा था ग्वालपोखर में, क्यों नहीं है स्कूल्स में। आप लोग भी कवर किए हैं चीज़ों को, हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से ग्वालपोखर में उस लिहाज से आज बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, क्योंकि 4 स्कूल में साइंस एट ए टाइम सब में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीकरीवाड़ी हाई स्कूल, धर्मपुर हाई स्कूल, लोधन हाई स्कूल और धर्मपुर ये आपका पंजपड़ा एलाइवर्स हाई स्कूल, इन सब के लिए जी 4। और पहले से ही 2012 से ही हमारे भेंडेवाड़ी हाई स्कूल में साइंस ऑलरेडी था। कुछ टेक्निकल वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, टीचर्स का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं कर रहे थे। तो इनके सब के लिए मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि उनके कोशिशों से ही उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी थी, हमने उसको करने की कोशिश किया। उनको जैसे जैसे वो बताए वैसे वैसे हम लोग काम किया है संगठन के तौर पर, और सही वक्त पर हम लोग इंशाल्लाह कोशिश किए हैं, और मंत्री साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, और ग्वालपोखर के लिए ये बहुत बड़ी बात है आजकल। अच्छा सर, अगर किसी स्कूल में अगर साइंस में बच्चा एडमिशन नहीं होता, तो क्या रेगुलर वो परमिशन वैलिड रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए आप जैसे आप सवाल किए सर को, ये सवाल मैंने भी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे देखा था कि 2 साल के लिए दिया गया है, 1 साल के लिए दिया गया है, ये बाद में नहीं रहेगा। इस तरह ये क्लियर करना ज़रूरी है। पहली बात तो आप नेगेटिव मत फैलाइए, एक पॉजिटिव है उसको आप जो लोग कह रहे हैं आपको उनका वहाँ। तो अब ये है कि कोई भी आप देखिए, कोई जॉब में देखिए, कोई भी देखिए, प्रोटोकॉल है, एक नियम है, एक रूल्स है कि पहले 2 साल के लिए प्रोबेशन में रखा जाता है। टीचर का भी 2 साल बाद ही उसका आपका ये होता है, कन्फर्मेशन मिलता है। तो इस तरह का एक रूल्स है गवर्नमेंट का, काउंसिल का, कि आप पहला 2 साल के लिए 1 साल के लिए उसको दिया जाता है, फिर वो कंटिन्यू होता है, इस तरह का रहता है, और वो कंटिन्यू रहेगा इस तरह का। टेंथ के लिए भी 5 साल का या 4 साल का ऐसा कुछ है? हर साल, हर 2 साल के लिए होता है सब कुछ, 2 साल के लिए होता है, फिर आपका एक्सटेंड होता है। जैसे आपका
9-10 अगर ऐड करना है तो पैसा 2 साल का रहता है, 11-12 ऐड करना है वो 2 साल के लिए रहता है, फिर वो एक्सटेंड होते रहता है, रिन्यूअल करना पड़ता है। रिन्यूअल जैसे जैसे होते रहती है, अब क्लासेस आगे बढ़ता तो रहता है। बच्चों में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है, सब खुश है? देखिए, बच्चों का तो पहले से ही एक उम्मीद था कि हम लोग ग्वालपोखर में ये हो, एक टारगेट था उन लोगों का कि हम लोग साइंस लेके पढ़ें। तो इससे काफ़ी बच्चों में एक ये आया है कि नहीं, अभी हम लोग ग्वालपोखर में रहते हुए भी साइंस का पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम आप लोगों के ज़रिए तमाम गार्जियन से, और आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है थोड़ा इस चीज़ को और हाइलाइट करें, इनको लोगों तक पहुँचाएँ, हाई लेवल पर इसको प्रचार करें, ताकि एडवर्टाइज़मेंट करें, ताकि बाकी लोग जो लोग नहीं जानते हैं, आज का मकसद ही वही है कि आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाना कि ग्वालपोखर में जो डिमांड थी साइंस का वो पूरा हो चुका है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ। टीचर का पढ़ाने का इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी। हर स्कूलों में डाउट है, लेकिन हम लोग जैसे ऐसा सर कहे कि गाइडलाइन जो है कि अगर आपके स्कूल में टीचर नहीं है उस सब्जेक्ट का, आप पास किया, जैसे हम लोग के यहाँ 14 हाई स्कूल है, 12 एचएस है और 2 सेकेंडरी स्कूल है। तो सेकेंडरी स्कूल से अगर हम लोग टीचर लेते हैं, एक साइंस का अवेलेबल है, या बाकी जो 7 स्कूल रह गया उसमें अगर साइंस का टीचर था वहाँ से भी ले सकते हैं। और सर जैसे कहे कि हम लोग प्राइमरी में भी कोई टीचर अगर रहता है तो वहाँ से भी क्वालिफाइड टीचर या उस सब्जेक्ट टीचर है तो हम लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, ताकि बच्चे का पढ़ाई नहीं रुके। और ये चूँकि एक बार हमें मिल गया है तो इसको हम लोग जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह, और इसको कंटिन्यू जैसे भी रखा जाए हम लोग रखेंगे। उसके लिए पार्ट टाइम टीचर लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग इसको करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि ये और दोबारा। सर साइंस स्ट्रीम के लिए सर लैब का भी व्यवस्था होना चाहिए, तो उसका जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही परमिशन दिया जाता है। और कुछ स्कूल में है, कुछ ज्योग्राफी लैब है, फिजिक्स का लैब है, कुछ स्कूल में। आपके यहाँ शायद इसका धर्मपुर में ज्योग्राफी आपका लैब है। तो इन सब सब्जेक्ट ऑलरेडी है, और जो नहीं है अब चूँकि परमिशन मिल गया है तो आप 2 चीज़ का कंफर्मेशन दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट अब जो है साइंस का टीचर आपका आ जाएगा रिक्रूटमेंट में, और दूसरा लैब वगैरह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग बहुत अच्छा है ही शुरू से ही हर स्कूल में, और इंशाल्लाह लैब का भी। सर क्योंकि आप राजनीतिक एक दल से बिलोंग करते हैं, एक सवाल है ओपोजिशन का कि ये ओपोजिशन की वजह से हुआ है। वो लोग देखिए, तो ये नहीं मानता। देखिए क्रेडिट कोई भी ले सकता है। हम देखिए, अब ये है कि डिमांड जो किए हैं वो किसके लिए किया है, लोगों के लिए किए हैं, चल ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस उनके कहने से नहीं हुआ। ये प्रोसेस हम लोगों का शुरू से ही 2023 से प्रोसेस में था। किसी वजह से, जैसे सर बताए टीचर का प्रॉब्लम, बीच में हम लोग क्या हुआ, 26,000 टीचर का एक इशू आ गया, आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डर गया थोड़ा सा, स्कूल जो मैनेजमेंट हो कि अब कैसे चलाएंगे स्कूल। जैसे आज के डेट में गोगांव हाई स्कूल 11 टीचर वहाँ एक एट ए टाइम चला गया है 2016 का इसमें, तो लोग कैसे क्या करेगा, एक डर रहता है। तो साइंस करे नहीं करे, बातों में आगे साइंस कर दिए, टीचर है नहीं देखा गया, कौन चलाएगा। एक बच्चे में भी तो आएगा कि पढ़ाएगा कौन सर हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग सोचना पड़ा। तो इसके लिए धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाए। ये प्रोसेस हम लोग शुरू से था, ऐसा नहीं कि आप बोले यार हम लोग इसमें उतर गए, ऐसी बात नहीं है। ये शुरू से हम लोग प्रोसेस चल रहा था, और मंत्री साहब की तरफ से बहुत बड़ी ये थी कि नहीं इसको करना ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुलाम रब्बानी साहब जो MIC साहब, वो खुद भी एक हाई स्कूल टीचर हैं, वो एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनको कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं और सोचते हैं, बोलते नहीं अलग बात है, लेकिन उनका जो सोच है वो उस लेवल का है, बोल के आज हम लोग साइंस यहाँ कर पाए। बाकी पहले से इसका सभी के जवान में है कि पांजीपरा, ग्वालपोखर, उत्तर दिनाजपुर, तमाम वेस्ट बंगाल में टीचर का कमी है। ये बात एक जग जाहिर बात है, लेकिन ये टीचर की कमी का जिम्मेदारी जिसके ऊपर जाता है वो तो इसको इशू बना के ममता बनर्जी को डेमोलाइज करने का कोशिश करता है। सच्चाई ये नहीं है। अगर कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह इसमें गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो टीचर से भर गया होता। वैकेंसीज है, 45,000 वैकेंसी है, लेकिन उसको नहीं ले पा रहा है। प्रोसेस में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाता है और कुछ हो जाता है तो कोर्ट का सहारा लेके रिक्रूटमेंट को रोक दिया जाता है। अब चाह के भी नहीं कर पाते हैं, वो एक मसला है। पांजीपरा स्कूल में तो और भी ज़्यादा है। साइंस का जहाँ तक सवाल है, साइंस के लिए हम लोग बहुत दिन से कोशिश चला रहे हैं। खास करके 2022 का सितंबर महीना में हम TIC में चार्ज में लिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस मंत्री साहब हमको बोले थे, यहाँ आए थे एक जलसा में, वो हमको बोले थे कि मतलब आपके यहाँ साइंस नहीं है, क्यों नहीं, आप कोई कोशिश नहीं किए। हम बोले सर हम तो इससे पहले किचोटला में थे, यहाँ ट्रांसफर आने के बाद हमने किए कोशिश, तो आप कीजिए। हम उसी दिन से कोशिश में लग गए। कौशल साहब जो हम लोगों का गोगांव हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, और अनवर भाई, हम उन लोगों से मिलाए तो हमको बताया कि साइंस चलाने पाएंगे तो
चलिए कोशिश कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। हम लोग लगे उस कोशिश में लगने के बाद 1 जनवरी 2025 में सर डीआई सर हम लोगों को बुलाए इस्लामपुर एआई ऑफिस में, और डीआई साहब नहीं आके वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया किसी एआई को। वो हम लोग को बताया कि देखें আপনাদের যতগুলো যাবতীয় ডকুমেন্টস দরকার সেটা আজকে আপনি জমা করেন, আমি সাইন করব। ये अनवर भाई अपना स्कूल छोड़ के आए एआई ऑफिस में, आके तमाम फाइल लेके डीआई के पास चले गए। वहाँ से जाने के बाद फिर उसको कलकत्ता गए, कलकत्ता में लगा थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद हमको थोड़ा ऑब्जेक्शन भी आया कि पार्ट टाइमर एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे पास 2 ही टीचर हम लोग थे, हम फिजिक्स में और मन्नान मास्टर साहब है वो पैरा टीचर हैं, वो बायोलॉजी में। हम लोग अपना दोनों उसमें इन्वॉल्व दिखाए अपने आप को। मैथ का हम पार्ट टाइमर एक लिए बाहर से, अनवर साहब वो लोग वहाँ कोशिश किए, बोले कि नहीं पार्ट टाइमर हो जाएगा। हम उसको लेके रेजोल्यूशन करके फिर उनका भी नाम दिए, तो हमारा परमिशन आ गया है 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ का। केमिस्ट्री में चूँकि उस वक्त हम टीचर नहीं पाए पार्ट टाइमर अपॉइंटमेंट देने के लिए, हम आज आप लोग इत्तेफाक से आज ही आ गए हैं, या प्रेस रिलीज हम लोग आज ही कर पा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का एक टीचर हमको इस्लामपुर में मिला है, वो कॉलेज में काम करते हैं, बीएड कॉलेज में, वो भी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वो यहाँ टाइम देंगे। हम लोग उस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉलेज टाइप में हो गया, हमको वो क्लास देंगे, हफ्ता में 4 क्लास वो देंगे। हम उसको लिए हैं, उसको लेके हमारा केमिस्ट्री का परमिशन मुश्किल से सर कमिंग मंडे तक हमको मिल जाना चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया कि 2022 में ही जो बताए यहाँ जलसा में वो आए थे, जलसा में भरे महफिल में वो ऐलान कर दिए कि साइंस पंजीपुरा में होगा। वो 2022 की बात है। मजर साहब भी थे, हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी थे। तब हम लोग थोड़ा फिक्र में लगे और ज़्यादा करके फिक्र में लगे। इसमें सबका रोल है, स्कूल का तो अपना एक रोल है सर, बच्चों का डिमांड है। हम इस बार 11 में एडमिशन लेने के वक्त में हिमशिम खाए। हमारे पास परमिशन था 300 बच्चा का, जिसमें हमारा सब्जेक्ट अलॉटमेंट था आर्ट्स का। 8 सब्जेक्ट था मेरे पास में, तो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे थे, मेरा स्कूल से खुद 452 बच्चा पास किया है इस बार माध्यमिक। हमको परमिशन मिला है 300 का। तो फिर हम मजर साहब से बात की, मजर साहब बोले डीआई के पास जाना होगा, डीआई साहब के पास वो परमिशन बढ़ाएंगे। वो डीआई साहब हमको 100 का परमिशन दे दिए, 400 हो गया। 400 बच्चा मेरा एडमिशन होने के बाद भी मेरा ही बच्चा बच गया। फिर डीआई साहब के पास हम गए, तो डीआई साहब बोले कि 75 आरो दी दीजिए। तो 475 परमिशन लेने के बाद 473 बच्चा मेरा 11 में रजिस्ट्रेशन हुआ। एडमिशन 475 ही हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 473 दो बच्चा किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। उन बच्चों में हमको वो लोग बोला कि साइंस हम लोग पढ़ना चाहते हैं सर, साइंस नहीं हो सकता है। हम बोले लिस्ट दो, एक 40-50 बच्चा अलग से एक लिस्ट दिया। आर्ट्स में उसका एडमिशन हो गया है ऑलरेडी, मेरे ही स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। लेकिन हमारे जो लोग हैं लीडर्स, जैसे अनवर भाई हैं, कौशल भाई हैं, सुब्रतो शाह हैं, उन्होंने हमको एश्योर किया है कि सर आप लिस्ट दीजिए, रजिस्ट्रेशन उसका आर्ट्स में हो गया, ठीक है। हम विद इन ए वीक उसका रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट अलॉटमेंट जो है हम चेंज करके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम डाल देंगे। इतना एश्योरेंस दिया है। अब हो सकता है, देखिए 1 हफ्ता में आपको ये खबर मिल सकती है कि हम बच्चों को इसी साल एडमिशन ले चुके हैं, सेशन स्टार्ट करने में कामयाब हुए हैं। अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम। 11 में इस बार मेरा 475 का परमिशन था, 475 ही एडमिशन हुआ है। टोटल स्टूडेंट 5 to 12 3850 टीचर कितने अप्रोक्स। टीचर टीचर, पैरा टीचर, सब मिला टोटल अप्रूव टीचर, मैनेजिंग कमेटी का मैनेज किया हुआ टीचर मिला के 40 से कम नहीं है हम लोग। एक बात। दूसरी बात, आपका एक सवाल था, देख 1 साल के लिए आपको परमिशन मिला। जी अब सवाल समझने में गलत है, टेक्निकली नहीं समझ पाए आप। 1 साल के लिए परमिशन मिला टू गेट द एडमिशन ऑफ क्लास 11 ना क्या, बट ये कोर्स 2 साल का होता है, ये पूरा नहीं होने तक वो परमिशन तो रह गया। नेक्स्ट ईयर नया सेशन में फिर परमिशन लेना पड़ेगा 11 का एडमिशन के लिए, नॉट फॉर 12। इनकेस सर अगर बच्चा एडमिशन नहीं लेता 2025 में, तो कहीं क्या ये ऑर्डर मान्यता होगा? ना ना ना, नेवर नेवर नेवर, ये रहेगा। इन केस हाँ, हम उसके लिए बहुत सब रीजन दिखा पाएंगे
In the admission time, council did not give me the permission of subject endorsed in this meantime, due to which I could not take the admission. यही बात हुई कि है ना, किसी भी हालत में हम उसको जाने नहीं देंगे, एक बार मिल चुका है नहीं जाना होगा। तो कोई भी इसमें कोशिश करेंगे तो इसको नहीं। जी सर। 2025 को आपको परमिशन मिल गया, तो क्या कहेंगे सर, कितने आप लोग इस खबर को लेकर कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है बच्चों का भविष्य इस पाठ्यक्रम में साइंस का? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं धर्मपुर हाई स्कूल का टीआईसी हूँ। 2020 से मैं टीआईसी हूँ और ये बहुत ही जॉयस और बहुत ही खुशी का मौका है कि हम लोग के स्कूल में साइंस स्ट्रीम में ऑर्डर मिल गया था। मैंने धर्मपुर हाई स्कूल को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी भी नहीं था, ज्योग्राफी का मिल गया था। टीचर हमारे पास है, ये भी खुशी की बात है। और स्कूलों के टीचर हमारे पास है। सिर्फ एक बायोलॉजी का पार्ट टाइम पहले से है, वो भी मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है। इन लोगों को लेके हम लोग कर रहे हैं। धर्मपुर हाई स्कूल में 2020 में जब टीआईसी बना, उससे पहले 2019 में अकबर साहब थे। अकबर साहब और मैं इस बात को लेके, और मैं चूँकि हमारे जो मंत्री साहब हैं गुलाम रब्बानी साहब, हम लोग एक साथ अलीगढ़ में पढ़े हुए थे। जब मैं धर्मपुर में आया ट्रांसफ़र होके, मैं दूसरी जगह था। 17 साल में लालगंज लगवा हाई स्कूल में नौकरी किया। उसके बाद 2014 में जब मैं आया तो रब्बानी साहब से मुलाकात हुई कि आलम तुम आए हो, थोड़ा कुछ अच्छा करो। उन लोगों को बहुत अच्छा है। तो उस वक्त के टीआईसी साहब के साथ मिलकर ही हम लोगों ने कोशिश किया कि साइंस करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे वहाँ से 10 पास करके निकल करके आज इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उसका नाम बस्ता के हैं, इंजीनियर डॉक्टर। तो हम लोगों ने उसी वक्त एक लैब बना लिया था। हमारे लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। एकदम सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इतने हैं कि चल जाएंगे। तो तब से कोशिश थी। टीचर्स कम थे, शायद इस वजह से जो उस वक्त का रूल था, जिस टीचर्स होने होंगे उस वक्त थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट रूल था। फिर आहिस्ते आहिस्ते रूल में कुछ ढीला हुआ। और अपर प्राइमरी में मुझे साइंस के टीचर्स मिले 2, और पहले से थे। ये सब तो मिल करके हम लोगों ने भेजा। एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर एकेडमिक डीआई साहब थे। एकेडमिक डीआई साहब आए हुए थे ब्लॉक में, वहाँ मीटिंग हुई थी। एसआई साहब धर्मपुर के बारे में जानते थे, धर्मपुर के, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि धर्मपुर का हो। हमारे ये अनवर सादत भाई और सब लोगों ने कोशिश किया और हम लोगों को परमिशन मिला, और इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से चलाएंगे। बस यही है कि परमिशन मिलते थोड़ा सा लेट हो गया। बच्चे ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, और कुछ बच्चे जो लेना चाह रहे थे हमको बार बार आके पूछे थे, सर होने वाला है, कब होगा कब होगा, कह नहीं पा रहे थे। जब तक परमिशन हाथ में नहीं आता है तो एडमिशन ले नहीं पाते हैं। इधर उधर ले लिया है, हम लोगों ने खबर दिया। आप लोग के माध्यम में आप लोग का बहुत थैंक यू कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। आप लोग के माध्यम में लोगों को ये खबर पहुँच जाए कि जिनके बच्चे या जो बच्चे लेना चाह रहे हैं अभी भी आए। जो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को ये दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि अभी भी जो मैंने रजिस्ट्रेशन हो गया है तो क्या हुआ, अभी भी उनका यहाँ पर हो सकता है, इसकी कोई कमी नहीं। आपका परमिशन आने को 3 हफ्ते के करीब होने जा रहा है, तो एडमिशन हुआ? एडमिशन 2-3 बच्चे हैं, जब तक इधर से पूरे नहीं आ जाते हैं, क्लियर जहाँ हो जा रहा है, तो अभी तक हम लोगों ने भेजा नहीं है। जो साइंस का परमिशन होगा, क्या प्रोसेस है एडमिशन का? कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? उसमें तो कराया कि अब तक आप सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट? तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। हम टिकरी हाई स्कूल से हैं, मेरा नाम अब्दुल अलीम है। हम लोगों को जो है परमिशन मार्च में ही मिल गया था। हम लोग जो है प्रोसेस, हम लोग स्टूडेंट के दरमियान बोले थे कि जो बच्चे तुम लोग एडमिशन लेना चाहते हो, तुम लोग साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ख्वाहिशमंद थे और कुछ बच्चे जो है फिर बाद में जो है वो पीछे हट गए। लेकिन हम लोग का प्रोसेस जारी है। जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन लोगों को जो है हम लोग साइंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, हम लोग इसमें मैथ है, बायो है, और जो साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो उसका जो है रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग जो प्रोसेस किया है उसका परमिशन नहीं मिला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला है। साइंस में एक्चुअली 5 सब्जेक्ट होता है, तो उसमें से हम लोग को 3 का जो है परमिशन मिला है। मैथ का मिला है, हाँ, उसमें केमिस्ट्री और जो फिजिक्स का नहीं मिला है, तो उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में है, वो भी मिल जाएगा।
सर ये जो एडमिशन 50% होने से वो एलिजिबल है फॉर एडमिशन। और जो हम लोग इसमें है, हम लोग होम स्टूडेंट है, हम लोग स्कूल से जो माध्यमिक पास आउट होता है वो एडमिशन लेता है, और कुछ बाहर से भी आते हैं, और सबका जो 50% से आप है उन लोगों को जो है हम लोग एडमिशन लेते हैं। और इस बार भी जो हम लोग का ज्योग्राफी का भी परमिशन इसी बार मिला है, और हम लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी में एडमिशन ले चुके हैं, ज्योग्राफी का चल रहा है। तो सर टीचर कितने आपके स्कूल में? हम लोग इसमें परमानेंट 9 टीचर हैं, पैरा टीचर 3 है, और कॉन्ट्रेक्चुअल 2 है, और एक 2 था जो साइंस में था, वो लोग जो अपना सेल्फ स्टडी के लिए जो एग्जाम कमिंग जो RST का जो एग्जाम होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा वो लोग लीव में है। सर स्कूल में टीचरों की कमी है, महसूस हो रहा है? टीचर की कमी है, लेकिन अब जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस जो है उसमें से टीचर हम लोग अप्रोच किए हैं, और उसमें से जो हम लोग वैकेंसी दिखाए उसमें टीचर मिल जाएगा। साइंस का मैक्सिमम टीचर है उसमें। कितने स्टूडेंट हैं? हम लोग स्कूल में जो 1700 लगभग स्टूडेंट है, उर्दू मीडियम, फुल्ली उर्दू मीडियम स्टूडेंट है। क्या नाम है सर? अब्दुल हलीम। पहले खास करके पांजीबाड़ा इलाके को कि साइंस की यहाँ पे बहुत कमी थी। साइंस पढ़ने के लिए हम लोग के बच्चे किशनगंज जाते थे, बिहार में जाते थे, और ख़ास करके लड़कियों को अगर साइंस पढ़ना हो तो बिहार जाते थे। वो एक चीज़ से वंचित हो जाती थी, कन्याश्री से। कन्याश्री जो स्कीम है बिहार जाने के बाद उसको नहीं मिलता था। अब अगर बंगाली में पढ़ेंगे, यहाँ एलाई बख्शी में पढ़ेंगे तो उसको कन्याश्री मिल जाएगी। वैसे भी आज कन्याश्री डे है। आज कन्याश्री डे भी है। हाँ, ये भी तो हो गया, आज कन्याश्री डे भी है। और खास करके जो बच्चियां लड़कियां हैं जो साइंस लेकर पढ़ना चाह रही हैं उनको फायदा मिलेगा। उसको फायदा मिलेगा। और इसके हम ये कहेंगे कि बच्चों को या इलाके के गार्जियंस को, जो कॉन्शियस गार्जियन है, बच्चों को साइंस में पढ़ाया जाए, ताकि उसका फ्यूचर जो हो साइंस और आर्ट्स मिला के आइंदा कुछ कर सकता है। सिर्फ आर्ट्स लेके पढ़ के हमारे इलाके के बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से साइंस भी कुछ भी जितना भी नॉलेज है, हमारे टीचर्स जितना भी पढ़ाए, एक फ़ायदा ये होगा। और ख़ास करके हम जैसे एक स्कूल और भी हुआ है जो वहाँ पे नहीं मौजूद है अभी, ग्वालपोखर हाई स्कूल, उसी स्कूल के हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम कहेंगे उस इलाके के लोगों को भी कि आप लोग अपने बच्चों को राग़िब कराएं साइंस में पढ़ने के लिए। और चूँकि हमारा वो इलाका बिल्कुल रिमोट है, और कुछ देर जाएंगे तो बांग्लादेश पहुँच जाएंगे। बरबीला तो बांग्लादेश में ही है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे गुलाम रब्बानी साहब, ऑनरेबल मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब को, जिनके कोशिशों से आज पांजीपाड़ा, लोधन, धर्मपुर हाई स्कूल और टिकरीबाड़ी हाई स्कूल साइंस स्ट्रीम का फैकल्टी मिला हम लोगों को। इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेत्री ममता बनर्जी का भी, क्योंकि हमारी नेत्री चाहती है कि हमारे बंगाल के जितने भी स्कूल हैं सब में अच्छी तालीम हो, अच्छे से पढ़ाई हो। और दूसरा नंबर है कि जो लोग हमारे इलाके के जो गार्जियन लोग अपने बच्चों को साइंस पढ़ाना चाहते थे, तो ग्वालपोखर में फैकल्टी नहीं होने के कारण बिहार या दूसरे कोई स्टेट में जाकर अपने बच्चों को एडमिशन कराते थे। मैं उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है कि अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना होगा। आप लोग अपने इलाके में साइंस की पढ़ाई होगी, अपने स्कूल में आप एडमिशन करा सकते हैं। कराने से गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है, जैसे कन्याश्री हो गया, बहुत सारा गवर्नमेंट का बेनिफिट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो दीदी दे रही है, मुख्यमंत्री दे रही है, वो सब बेनिफिट वो पा सकता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 10 लाख का मिलता है। हम लोग बिहार या दूसरे स्टेट में पढ़ने के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं भी ले पाते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तो उस फैसिलिटीज़ को पाएंगे। जो बच्चियाँ पढ़ती है उसके लिए कन्याश्री पाएंगे। तरह तरह की सुविधाएँ मिलते रहेंगी उन लोगों को। और जो लोग हमारे ग्वालपोखर में आके जो लोग कहते हैं कि ग्वालपोखर के बच्चे बाहर पढ़कर साइंस में डॉक्टर या इंजीनियर बन रहे हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि देखिए, ग्वालपोखर के हमारे रहबर, हमारे नेता हैं गुलाम रब्बानी साहब। जब 2024 के बाद ये सवाल उठा रहे हैं जो हमारे विरोधी नेता है, तो 2024 के बाद ये सवाल उठा रहे हैं, और हम लोग काम शुरू कर दिए हैं 2022 से। मास्टर साहब कह रहे थे हमारे TIC साहब कि 2022 से ही हम लोग इस काम को लेकर आगे बढ़ चुके थे। उनको इस बात का नॉलेज था या खबर था कि शायद अब साइंस फैकल्टी यहाँ ग्वालपोखर में होने वाला है, इसलिए वो चालाकी करके लोगों को गुमराह करने के लिए उसी मुद्दा को उठा रहा है कि हम कहे तब किया। ऐसा नहीं है, हम लोग पहले से तैयारी में लगे हुए थे, प्रोसेस में लगे हुए थे, आज आके कामयाबी मिली है। तो इसका क्रेडिट वो
लोगों को मतलब बरगला कर, झूठ बोलकर बरगला कर लेना चाहता है। तो ऐसा हमारे ग्वालियर के लोग ऐसा नहीं है, जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि कौन काम करने वाले लोग हैं, कौन सिर्फ भाषण देने वाले लोग हैं। काम करने वाले लोग, इससे पहले प्रेस मीट में हम लोग कहे थे, मैं कहा था कि ग्वालपोखर में जो करना होगा काम तो सिर्फ हमारे पार्टी के लोग, तृणमूल पार्टी के लोग ही करेंगे, तृणमूल पार्टी के सरकार ही करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। आज वो साबित हुआ हमारे गुलाम रब्बानी साहब के उद्योग में और हमारे नेत्री के मतलब कहने नेत्री के मतलब जरिया हमारे ग्वालपोखर में साइंस स्ट्रीम आज हमारे हो चुका है। साइंस स्ट्रीम कैसी साहब कहे, आपको डिटेल्स में बता चुके हैं कि किस तरह से प्रोसेस है। हर चीज़ का एक नियम कायदा है, प्रोसेस में चलना पड़ता है। ये स्टार्टिंग है, अब आने वाले वक्त में अगर ये इनवैलिड हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो फिर जवाब देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा स्टेट में बेहतरीन एजुकेशन हो, उसको लेकर सरकार चिंतित है और वो चाहेगी कि 1 साल का दे के हम लोग बंद करा दें। सर, आप इस स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के पोस्ट पे हैं, अगर इनके टीचरों की जरूरत पड़ती है तो उसके इंतजाम करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो सर कहे, हमारे स्कूल में हम लोग मैनेजिंग कमेटी के तरफ से यहाँ 10 या 12 स्टाफ हम लोग रखे हैं, उसको सैलरी हम लोग दे रहे हैं स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और जी चंदा करके दे। हाँ, हम लोग कलेक्शन करके बच्चों से लेकर टीचर का सैलरी देते हैं। और जो सरकारी परमानेंट टीचर है वो लोग भी काफ़ी है। अब जरूरत पड़ेगा साइंस के लिए टीचर, तो अभी एसएससी का एग्जाम होने वाला है, हम लोग अपना प्रपोजल डालेंगे, जो क्वालिफाइड होगा और टीचर आने लगेगा। कितने साल से पढ़ा रहे थे? यहाँ लगभग 10 साल से ऊपर हो गया ना, वो जो कैजुअल टीचर लोगों को। हाँ, लगभग 12-15 साल से 12-15 साल से चल रहा है। 12-15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, अभी तक टीचर की बहाली नहीं कर रहे हैं। नहीं, कम था उस वक्त। नहीं समझे, हम लोगों को जितना टीचर अवेलेबल होना चाहिए, आप बखूबी जानते हैं कि पूरे बंगाल में हर हाई स्कूल में अवेलेबल टीचर नहीं है। जहाँ जहाँ कम है वहाँ मैनेजिंग कमेटी की तरफ से हम लोग लेके काम चला रहे हैं। यहाँ के टीचर देखिए, इसमें सिर्फ राज्य सरकार ही इसको मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग करते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो ये दूसरे सरकार, दूसरा स्टेट वाला तो वो लोग कहेगा।